Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q1 FY22 results of Stylum Industries Limited, hosted by Systematix Institutional Equities. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Sanjeev Kumar Singh from Systematix Institutional Equities. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon, everyone. We welcome the management and you all on the con call today. We have with us Mr. Jagdish Gupta, Chairman and Managing Director of the company. So I hand over the call to the management for their opening remarks. Over to you, sir. Yes. Welcome to everyone. I am Jagdish Gupta. Everyone know about the Stylum, and if there is any question, I am ready to answer. Sanjeev ji. Hello. Yes, sir. We will open the. Yes. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Dhiral Shah from Phillip Capital. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir, and thanks for the opportunity. Yes. Sir, this quarter we have seen the fall in the export revenue on a quarter-on-quarter basis. So if you explain the rationale, fall in the export revenue, sir, on the quarter-on-quarter basis. No. I think you have not gone through this quarter. Last quarter it was 104 crore. Fourth quarter. It is not down, it is increased. But this quarter is, yes, there is again second wave every part of the world. For this reason, it was slightly declined. If you go for first quarter of last year, it is grow more than 200%. So that's why I'm comparing on a quarter-on-quarter basis, sequential basis. Even quarter basis, you are where किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो आप, फर्स्ट क्वार्टर के साथ या लास्ट क्वार्टर के साथ? नहीं सर, लास्ट क्वार्टर Q4. नहीं, Q4 में तो आप देखो ना, Q4 में नॉट क्वार्टर टू क्वार्टर डाउन, उसमें डाउनफॉल ओनली फॉर दिस रीजन, क्योंकि हर जगह पे द्वारा फिर यूके जहां हमारी बिगेस्ट मार्केट है, जर्मनी, एवरीवेयर इज ए सेकंड लॉकडाउन एंड देयर इज नो मच डिक्रीज ऑफ द ओनली 10% डिक्रीज इन दिस क्वार्टर एक्सपोर्ट. But this now everything is open. This quarter is going very well. Okay, so you expect, sir, there will be a growth in the export revenue for coming 3 quarters, right? For FY22. Yes, no. 3 quarter I cannot say. This quarter, running quarter is okay. 3 quarter, if again there is a problem of COVID or anything else worldwide, then is a different issue. Otherwise, certainly if everything, there will certainly be growth. Okay. And sir, how is the current demand scenario in the domestic market? Have you seen any recovery? Yes. It started recovering. If you go through even this quarter, you see we have it almost 39 to 40 crore turnover, in spite of the fact that there is a lockdown still in few states. But first and second month was almost totally lockdown everywhere. Okay, so have you started seeing the recovery? Yes. It is recovering. It within 1-2 months it will be on the, if there is no problem now, so it will be same like fourth quarter, more than that. Okay. And sir, lastly on the short-term loan part, sir, we have seen the rise in the short-term loan. So is it due to the higher inventory which we are holding? Yes, absolutely right. The reason being, सब जितने ब्रांचेज बनाए हुए हैं डोमेस्टिक में, वी हैव ऑलरेडी पाइल ऑफ द स्टॉक. तब तो पता नहीं था ना ये कोविड आ जाएगा. दिस इज द ओनली रीजन. एब्सोल्युटली करेक्ट.
Okay. And so lastly, on the plywood part, so when are we going to, start the overall production for the plywood? अभी तो हमने 1 महीना पहले ही, 1.25 महीना पहले अनाउंस किया। So overall construction, I'm talking about the building construction and all that. नहीं, लैंड हमने ले ली, पहले हमारे पास थी, थोड़ी सी ले ली, फॉरेस्ट को अप्लाई कर दिया पेड़ काटने के लिए, कंसल्टेंट हायर कर लिया। वो तो ये पहले भी मैंने कहा था 9-10 महीने तो लगेंगे ना इस प्रोडक्ट को, प्रोजेक्ट को भी। तो जस्ट इनिशियल 1 month पास्ट ओनली, 1.5 month। Okay. Thank you so much, sir. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Sanjay Shah from KSA Securities. Please go ahead. नमस्ते सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। सर जरा हमें बताएं ये जो क्वार्टर गया विच वी अंडरस्टूड फ्रॉम द रिजल्ट, लेकिन आगे आपका कैसे आपको लग रहा है और कौन से ज्योग्राफी में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और कौन सी प्रोडक्ट मिक्स में हम आगे जा रहे हैं विच कैन इंक्रीज अवर मार्जिन एज वेल? बहुत हर जगह ही जा रहे हैं। अगर आप देखो इस क्वार्टर में भी हर जगह ऑलमोस्ट, डोमेस्टिक में तो काफ़ी हद तक लॉकडाउन ही रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत कंट्रियों में लॉकडाउन रहा है, फिर भी चलती रही ग्रेजुअली। एक्सपोर्ट इज नॉट सो मच डैमेजिंग इन ओवरसी मार्केट। पर अब हमने इस क्वार्टर रनिंग वेरी गुड। इसमें एक्रेलिक में भी इस क्वार्टर में देयर इज नो सेल ऑफ एक्रेलिक एट ऑल, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाए थे। एक्रेलिक भी हमारा क्वाइट होपफुल अब स्टार्ट होना शुरू हो गया है। लैमिनेट्स में भी हर जगह ही सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ने का कोई चांस ही नहीं लगता। दिस मंथ दिस क्वार्टर में बी डेफिनेटली देयर विल बी 20-30% मिनिमम 30% इंक्रीज देन द पास्ट क्वार्टर, सर्टनली। वेरी नाइस। तो वो एक्सपोर्ट से ज्यादा आएगा या डोमेस्टिक में भी बढ़ रहा है? दोनों जगह पे हमारा ज्यादा फुटफॉल बढ़ रहा है। ना पूरा बढ़ रहा है, तभी तो हमने इतना स्टॉक बना के रख लिया। फुल टीम, एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर में ज़्यादा है हमारे, क्योंकि वी ऑलरेडी हायर्ड सो मैनी पीपल ऑन हाई पोजीशंस हर जगह, हर सिटी में। तो वो सारे रिजल्ट आने वाले ही हैं बड़ी जल्दी। यू विल सी नेक्स्ट क्वार्टर, एंड दिस क्वार्टर में यू विल सी आफ्टर 1-3 months। ओके। सो पूरे ज्योग्राफी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह पे हम ये पूरा आएगा, डेफिनेट आएगा। वेरी नाइस। और सर ये जो प्लाईवुड है उसमें हम लोग 60 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, तो हमारी क्या कैपेसिटी बनेगी वहाँ पे? ऐसे है ना, जो कैपेसिटी अगर इन कंसल्टेंट की फिगर देखते हैं, जब कंपटीटर की देखते हैं, वो मिनिमम 250 to 350 तक सेल जा सकती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच कैपेसिटी वी विल यूटिलाइज। राइट। हमें ये लगता है ना, जो ऑर्गेनाइज मार्केट इज तो बिग, 4-5 हज़ार करोड़ की मार्केट है, देयर इज ओनली 3-4 प्लेयर। तो हम तो वहाँ से 5-6% शेयर ही ढूंढ रहे हैं ना, विच वी आर एक्सपेक्टिंग वी विल गेट इट। करेक्ट। और सर यूएस में हम लोग ने जो पेनिट्रेशन किया था, वहाँ से कैसे रिस्पॉन्स है अभी वहाँ से? ना यूएस में तो पेनिट्रेट हुआ ही नहीं कभी अभी ज़्यादा। नहीं करने वाले करने वाले अभी भी वही प्रॉब्लम चल रही है। कोई ट्रैवल बैन है, कहीं जा नहीं सकता, कर रहे हैं यूएस में, बस वही वीक चल रहे हैं अभी। दैट इज ओनली अवर एरिया वेयर वी आर स्टिल लिटिल वीक। ओके। और ये सॉलिड एक्रेलिक की डिमांड कहाँ से आ रही है, कौन से रीजन से आ रही है हमें? नहीं, अब डोमेस्टिक में तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी ऑलरेडी बिल्ट अप वेरी बिग टीम। अभी शुरू किया 3-4 वीक की, नॉट मंथ। इस मंथ से ही शुरू कर लिया हमने, हर जगह अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट में हमारा यूएसए जा रहा है, मैक्सिको जा रहा है, दुबई जा रहा है, कुछ ताइवान जा रहा है। अभी शुरू हो गया वहाँ एक्सपोर्ट के रिपीट ऑर्डर आने शुरू हो गए। वही प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत है सैंपल हैं, कोई कोरियर नहीं जाता, शुरू हो गया है इतने, वही डैमेजिंग कर रहा है जो थोड़ा सा कोविड सिचुएशन है। पर होपफुली इट विल बी इम्प्रूव्ड वेरी सून, होपफुली। राइट। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, हमने इंस्पाइट ऑफ राइजिंग इतने भाव बढ़े हैं ट्रांसपोर्टेशन के, रॉ मटेरियल के भाव बढ़े हैं, हमारा टर्नओवर थोड़ा कम आया बिकॉज ऑफ कोविड, फिर भी हम अच्छा मार्जिन मेंटेन कर पाए हैं। तो आगे जाके आपको क्या लगता है मार्जिन स्ट्रक्चर इससे अच्छा ही रहेगा, बेटर ही रहेगा? नहीं, आपने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है।
अगर यही रहा, अगर रॉ मटेरियल की प्राइसिंग डाउन आएंगी तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव मोर एंड इट शुड इम्प्रूव। नॉट वन, ओशन फ्रेट भी बढ़े हुए हैं, हर चीज बढ़ी हुई है। यस यस। पूरा फैक्ट पड़ा है। जहाँ दो चीजें हैं, अगर सेल बढ़ेगी तब भी मार्जिन एक्सपेंसेस डाउन आएंगे, वो भी एक चैप्टर आएगा। प्राइसेस भी एक साइकिल है, डेफिनेटली डाउन आएंगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, बढ़ने चाहिए जी। Sir, and thank you for dividend, which first time dividend list पे आ गए। We will try to be maintained it. Try, definitely we will think the continuity should not be break. Very nice sir, very nice, very nice. Thank you। कुछ और क्वेश्चन है तो मैं लाइन क्यू में आता हूँ। थैंक यू। Anytime, anytime. Thank you. The next question is from the line of Keshav Garg from CCIPL. Please go ahead. Sir, first of all, many congratulations for very good numbers and also maiden dividend. And Thank you, sir, मैं ये समझना चाह रहा था सर, अपन ने सर हाईएस्ट एवर सेल फोर्थ क्वार्टर में 168 करोड़ की थी। फिर सर हमको सब जानते हैं कोविड ये सब इशू आ गए, तो सर बट अभी गोइंग फॉरवर्ड सर फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड सर क्या हम वही 166 करोड़ का क्वार्टरली रन रेट कर पाएंगे अचीव, या सर वो Q4 सीजनली हाई क्वार्टर था तो देन मे बी वो Q4 में ही। अगर मेरे से पूछते हो, दैट इज नॉट द हाईएस्ट एट दैट टाइम। उसके बाद तो हमने बहुत मशीनें भी लगा ली। अगर सब कुछ ठीक चला, देयर शुड बी मोर देन दैट, शुड बी। सर तो लगभग 200 करोड़ के करीब पर क्वार्टर सर है कैपेसिटी हमारे पास। आई कैन नॉट कमेंट। इस क्वार्टर में नहीं आए तो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर एवरीथिंग शुड बी, विल बी पीसफुल एवरीवेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती जी किसी चीज़ में। नहीं तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो हमने बना लिया, बहुत बड़ा बनाया हुआ है। सर मेरे ख्याल से आपकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में लिखा है कि हम लगभग सेम कैपेसिटी से डबल कर सकते हैं अपना टर्नओवर। तो सर बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, तो है ही, तो हम हर जगह ही बताते हैं जी। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक कह रहे हो आप। सर तो लगभग 1000 करोड़ की हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी है। नहीं जी, टोटल कैपेसिटी हमारे जो प्लांट एग्जिस्टिंग विदाउट प्लाईवुड 1200 से 14 करोड़ की है जी कैपेसिटी टोटल एक्रेलिक डाल के। ओके सर। सर तो ये कब तक हम पहुंच पाएंगे इस कैपेसिटी पे? देखो जी, ऐसे एवरी वन इज होपफुल। हमने जो बना ली इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं तो चाहूँगा इस साल ही हो जाए, पर अभी कुछ नहीं कमेंट्स। पर एवरी ईयर इट शुड बी गुड। आई एम हैप्पी जो हमारा ये क्वार्टर गया है, तो हम उसकी वजह उसमें भी देखोगे आप, इन स्पाइट ऑफ सो मैनी चैलेंजेस, तभी भी हमने सेल भी काफ़ी अच्छी की है, मार्जिन भी मेंटेन किया। आई एम क्वाइट होपफुल दैट डेफिनेटली 3 क्वार्टर शुड बी वेरी गुड। और ये सर, और सर अपना सर क्राफ्ट पेपर के सर सुनने में आया वापस थोड़े दाम बढ़ गए हैं आफ्टर लॉकडाउन खत्म हुआ जब से। बढ़ गया, पक्की बात है। सर तो मतलब क्या इम्पैक्ट आप सर, कुछ अपन ने प्राइसेस बढ़ाए कि अपने प्रोडक्ट प्राइसेस? नहीं ऐसे है ना जी, ये ट्रायल जो ना इतनी डिमांड सप्लाई है लेमिनेट्स में, प्राइस ना भी बढ़े, अगर आपकी सेल ही बढ़ जाती है तब भी वो कवर हो जाता है। ये तो साइकिल है, 4-6 महीने और बढ़ जाएंगे फिर कम हो जाएंगे। आप देखो ना, जो हमने फर्स्ट क्वार्टर है वो भी बढ़े हुए दामों पे ही लगाया है ना जी सारा कुछ। जी जी जी। तब भी मेंटेन हो सका है। हम और वैल्यू एडिशनली आइटम में जा रहे हैं, जैसे जैसे एक्रेलिक आएगा, जो हमारे एंटी फिंगर बिकेंगी, इससे और वैल्यू एडिशन बढ़ेगी। तो कोई चैलेंजिंग तो देखो इंडस्ट्री है, जब इतनी बड़ी वॉल्यूम से पहुंच जाते हो, बहुत ड्रामेटिक चेंज ना आए कोई ड्रास्टिकली, मतलब छोटी छोटी चेंजेस आती जाती हैं, किसी तरफ फायदा हो जाता है कहीं नुकसान हो जाता है, कोई इशू नहीं है जी। आई एम क्वाइट होपफुल जो हमने फर्स्ट क्वार्टर में किया है, जो लास्ट क्वार्टर में किया था, वी विल मेंटेन। एंड हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो हम बढ़ानी भी शुरू कर दी है, बढ़नी भी शुरू हो गई है मार्केट में। श्योर श्योर श्योर। सर तो कोविड को छोड़ के सर और कोई आपको रिस्क लगता है क्या सर? हाँ लगता है, डेस्टिनी का लगता है और कुछ नहीं है, किस्मत का। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक सर। Thank you. The next question is from the line of Achal Lohade from JM Financial. Please go ahead. Good evening, sir. Thank you for the opportunity. There are two questions actually. One is in terms of the distribution.
in the domestic market, how many distributors do we have, and what is the a plan here in terms of over next 2 to 3 years? हेलो In domestic market, sir, laminate. नहीं ऐसे है ना जी, डोमेस्टिक मार्केट में वी आर डूइंग अवर बेस्ट। जो डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन होता है ना जी, डिस्ट्रीब्यूटर नॉट मैटर फॉर क्वांटिटी, दे शुड बी मैटर फॉर क्वालिटी। अगर आपके क्वालिटी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा बना लो आप, जो बेचता ही 200 शीट है, व्हाट डज मैटर। डिस्ट्रीब्यूटर कम है, अगर उसकी उनकी क्वांटिटी ही बहुत ज़्यादा है, वो कम ही काम चला देंगे आपका। सो अभी हमने स्टार्ट किया, हर जगह RDC 6 हमारे हो चुके हैं, हर जगह स्टॉक बिल्टअप किया हुआ है, अच्छी टीम फ्रॉम द सेम लाइन ले चुके हैं। आप इस क्वार्टर में देखोगे जो रनिंग कमिंग क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर में भी देखो, वी ऑलरेडी डिड ऑलमोस्ट 39 to 40। या ये क्वार्टर में जो चल रहा है, आई एम क्वाइट होपफुल इट विल बी मिनिमम 50% और 60-70% प्लस देन फर्स्ट क्वार्टर डोमेस्टिक से। जब इतना सेटअप बना लिया, सैलरी कितनी दे रहे हैं क्वार्टर में दी है हमने लास्ट में, रिजल्ट उसके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आएंगे। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम। अगर मैं कहूँ कि इतने 150 बन जाएंगे, अगर उसमें कोई काम की नहीं है, 150 क्या करेंगे, अच्छे तो 100 ही बहुत है। करेक्ट है ना, वो तो क्वालिटी वाले होने चाहिए, क्वांटिटी से क्या कराना है हमें। वी आर गेटिंग ए वेरी वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर। वो तो आप देखोगे आने वाले टाइम में, आपको रिजल्ट ही बताएंगे, बट वी आर डूइंग राइट नाउ। करेक्ट सर, the kind of hiring we have done, we use that we हम लोगों हमने people appoint करे हैं। So can you elaborate can you give some sense in terms of which aspects of the business we have hired from where? नहीं वो तो सेम प्रोडक्ट नॉट सिमिलर, सॉरी सेम। जैसे हमारे लोग भी हमारे कंपटीटरों के पास चले जाते हैं, नंबर 2 वाला 1 नंबर पर हमने उनके लिए ऐसे चलता जाता है जी। सेम लाइन के हमारे पास है, अब हर लाइन में, एक्रेलिक में भी सेम लाइन के, लैमिनेट्स में भी सेम लाइन, एंड वी आर गेटिंग ए वेरी गुड रिजल्ट। So how many people have been hired in last let's say? टोटल आपको हमारे पास कम से कम एक क्वार्टर में, अब डोमेस्टिक मार्केट में ही टोटल टीम भी 130 to 140 के बीच होगी। एवरी डे समबडी ज्वाइनिंग, बढ़ रही है टीम जी। आप देखोगे रिजल्ट पूरे बहुत अच्छे आ रहे हैं, खुद दिख रहा है। Right. So how do we look at the employee cost? Should we look at as a percentage of revenue, or we look at जो 12 करोड़ का इस क्वार्टर का रन रेट है, that should sustain? देखो ये कोई मैटर, देखो जो अगर सेल बढ़ती है ना जी, मैं तो बल्कि लास्ट क्वार्टर में देखो हमारी 8 to 9% के करीब कॉस्टिंग आ रही है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। राइट। मेरे को तो ये भी ज़्यादा लग रही है। ये इतने से अगर हमारी जितनी भी सेल बढ़ जाए, जितना मर्जी और बढ़ जाए, इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अगर ये बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन आएगी, तब बढ़ेगी, नहीं इट शुड नॉट बी। रादर अगर सेल ज़्यादा बढ़ी तो ये 10% ये कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। Right. So 8 to 9% of revenue will be the employee cost. Total, yes, sir. Maximum. It should be less than this. Should be. बाकी सर्कमस्टांसेस बताएंगे, बढ़नी नहीं चाहिए एटलीस्ट। करेक्ट। अच्छा सर, लास्ट क्वार्टर आपने बताया था कि 600 करोड़ का रेवेन्यू पॉसिबल है FY22 में। आप अगर हम अज्यूम करते हैं कि आगे ऐसा कोई कोविड लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं होगा, तो वुड वी मेंटेन दैट 600 करोड़ टारगेट, और कुड इट बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज? नहीं 600 करोड़ 3 क्वार्टर नहीं, पूरे साल के लिए सर, FY22 के लिए। यार वाई नॉट, ये तो फिर तो अब इतना भी नहीं आएगा, फिर तो इतने एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ही नहीं चाहिए, फिर तो 6-7% आनी चाहिए। अगर कोविड वगैरह ना हुआ फिर तो ज़्यादा आना चाहिए नहीं। फिर तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, इतनी बड़ा एम्पायर बनाया हुआ है, ये जहाँ अगर हम कह रहे हैं हमारी 1200-1300 करोड़ की कैपेसिटी है, तो फिर तो हम 50% पे चलेंगे। ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आना चाहिए, आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, एक्सपोर्ट साइड में which are the new countries visited
And Export में? let's assume things normalize, how do we see that contribution from those countries for next 2 एक्सपोर्ट quarters? में Export में, sir. Yes. मतलब बहुत बढ़ रहा है। अगर आप लास्ट ईयर से एक्सपोर्ट का कंपैरिजन करना शुरू करो क्वार्टर वाइज क्वार्टर, यू विल सी देयर विल बी डेफिनेटली 15 से 20% इस साल में भी हमारी ग्रोथ होगी एक्सपोर्ट में मिनिमम। जैसे लास्ट ईयर इवन इन स्पाइट ऑफ कोविड 10% तो हमारी लास्ट ईयर ही हुई थी, 10 to 11%। इसमें भी मिनिमम 15 से 20% डेफिनेटली आएगी इंक्रीज। राइट। और ये जो इंक्रीज आ रही है ये सेम कंट्रीज से आ रही है कि नो 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 सेम से भी आ रही है, सेम से भी बढ़ रही है। नए नए कस्टमर बढ़ रहे हैं, नए कंट्री बढ़ रहे हैं। ओके ओके। अभी तो हमारी इसमें एक्रेलिक की सेल नहीं है। जब एक्रेलिक का एक्सपोर्ट होगा इट विल गो मोर देन दिस। सर एक्रिलिक की कैपेसिटी कितनी होगी और कितना पोटेंशियल रेवेन्यू हो सकता है? 250 से 300 करोड़ का ही। एंड कैपेसिटी शीट और वो पता कि जी शीट में भी उसका कोई पैरामीटर नहीं है जी सर। उसका तो कभी 6 mm की बिकती है, कभी 8-12 की। अब 12 से लोग 6 mm में जा रहे हैं। वो मैटर नहीं करता जी ज़्यादा। मेन ना वैल्यू उस पर ज़्यादा मैटर करती है जी। शीट तो जैसे हम सोचते हैं 20-22 हज़ार शीट बननी चाहिए पर मंथ। अगर वो 6 mm की बने वैल्यू कम हो जाएगी, 12 की बने वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि वैल्यू में। राइट राइट। I think this is super helpful, sir. Thank you. Thank you. I'll come back in the queue. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Rasmik Oza from Kotak Securities. Please go ahead. Mr. Rasmik Oza, your line is unmuted, sir. Please go ahead with your question. Yeah, good evening, sir. Rasmik बोल रहा हूँ। सर ये एक्रेलिक्स का पूछना था। आपने बोला कि पोटेंशियल रेवेन्यू कैन बी 300 to 400 crores. This is with only the first production line, right? Yes, 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 yes. इसके बाद is there any room to increase the production line future में? किसकी एक्रेलिक you are talking about? Yes, हाँ एक्रेलिक की। Yes. हाँ हाँ उसकी नई मशीन लग जाएगी और हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और ये फर्स्ट प्रोडक्शन लाइन कभी तक फुल यूटिलाइज हो सकता है सर टाइम वाइज? कुछ नहीं। देखो जी अब तो कोविड हमने जब ये चली तब 1.5 साल का कोविड की सिचुएशन आ गई। सो आई डोंट नो इट कैन बी। हेलो कितने? यस सर। हेलो So your question is answered. Sorry again. No. हाँ जी। I was just waiting for the last thing clarification कि ये प्रोडक्शन लाइन कभी तक फुल यूटिलाइज हो सकती है फर्स्ट फेज है? देखो अगर सारा कुछ ठीक ठाक हुआ ये तो 1.5-2 साल में हो जानी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही क्योंकि मार्केट इज ग्रोइंग फॉर एक्रेलिक। ओके। और सेकंड क्वेश्चन सर मेरा प्लाईवुड पे था। ये इन टर्म्स ऑफ टनेज के हिसाब से कितना कैपेसिटी वी आर पुटिंग अप बाय इन्वेस्टिंग 60 crores? देखो जी हमें कुछ नहीं पता जी। हमें अभी क्योंकि वी आर वेरी इनिशियल स्टेज, वी आर गोइंग फॉर 4 प्रेसेज। प्रेसेज के हिसाब से जा रहे हैं। उसमें आगे प्रोडक्ट की कम्बिनेशन आ जाती है, प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है कौन सा नहीं बिक रहा। ओके। अभी वेरी इनिशियल स्टेज है जी हमारे लिए। ठीक है फेयर इनफ सर। सर थैंक्स सर। आई कम इन द क्यू अगेन। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Venkatesh Shekhar, an individual investor. Please go ahead. Hello. जी Sir, I would like to know what about our debt reduction? You have told like FY22 you will reduce the debt to 0. How much is it possible, sir? No, देखो इट इज पॉसिबल लाइक दिस। 2 चीज़ें हैं। या तो जैसे हम प्लाईवुड में विच वी आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर हमने वो इन्वेस्टमेंट कर दी मे नॉट वी कैन क्लियर 0, वी कैन नॉट मेक 0। वो भी हमने जो आएंगे कैश करोड़ वो तो पर्पज था। अगर इफ वी डोंट गो फॉर प्लाईवुड देन इट कैन बी डेट फ्री।
हाँ जी Sir, one more question regarding NSE listing. Last time you told that we are no, it is on the last stage. We are Sorry to interrupt, Mr. Shekhar. So there's a disturbance coming from your line. Request you to mute your line after your questions. Okay. Hello. Yes. I would like to know the NSE listing. What will be I told you, we have already submitted application is with them. I think it will be on final stage, almost near to final. Regarding the US markets, last time you told that you are trying to penetrate deeper. Has there been any improvement on that thing? नहीं ऐसे ना जी कोई मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था जो पूछ रहे थे JM फाइनेंशियल वाले अभी तक ना कोई ट्रैवलिंग हो सकती है वी आर सर्चिंग बट अभी तक पूरी सक्सेस रेट कोई फर्क नहीं पड़ता ना जी यूएस मार्केट में भी जितना इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है ओनली 7-8% इज ओनली टू यूएस मार्केट 92% टू अदर मार्केट वेयर वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी एंड वी आर सेल इज इंक्रीजिंग एवरी क्वार्टर एवरी मंथ यू कैन सी अगर आप लास्ट Sir, one more question regarding raw material prices. You have mentioned that in June there has been a reduction in raw material prices. How it is going from July onwards? कुछ ज़्यादा नहीं हुई जी नहीं हुई अभी there is no much reduction. Okay, but it is better than the last 2 months, sir. No. वैसे ना प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है ना जी उसमें there is increase in the prices of finished goods also slowly. Okay. Thanks for the good numbers, sir, and thanks for the dividend also. I'm greatly appreciating that. Thank you very much. It is already delayed. Thank you. The next question is from the line of Siddesh Kumar from Alpha Capital. Please go ahead. Yeah, thanks for the opportunity. Sir, ये domestic business आपका all this while has been very small, just about 20-25% of your business. अभी जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, आपने टीम बढ़ाई है. नहीं. What I want to understand is, sir, आप exactly अगर आप कुछ डिटेल में समझाएंगे आप डोमेस्टिक में exactly क्या कर रहे हैं to really scale up the business और कंपटीशन के साथ कैसे आप compete करने वाले हैं to ramp up this, वो helpful रहेगा सर. जी ऐसे है ना जी पहली बात तो कंपटीशन जो है वो कंपटीशन तो देयर इज अ वेरी बिग गैप इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ पहली बात. नंबर 2 हमने जो सिस्टम वो कर रहे हैं हमने RDS सारे स्टोर बना लिए अपने वहाँ टोटल स्टॉक कर दिया जो सिस्टम है तभी से कोविड आ गया फर्स्ट क्वार्टर में. तो अभी तो अगर हम एक हमारा कंपटीटर 60 करोड़ की महीने की सेल कर रहे हैं हम तो 30 करोड़ ही ढूंढ रहे हैं ना जबकि हमारी क्वालिटी बेस्ट है कोई बात नहीं इसलिए वो उतनी सेल होनी ना जी कोई मुश्किल नहीं है. अगर आप लास्ट क्वार्टर में भी देखो हम जब जंप लगना शुरू हुआ 21-22 करोड़ पे पहुंच गए थे हम तभी ये कोविड आ गया. इन स्पाइट ऑफ दैट हमने 39-40 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर में कर लिया जबकि इंडिया इज ऑलमोस्ट मोर देन 50-60% क्लोज. आप नेक्स्ट क्वार्टर में देखोगे आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल सी द ग्रेजुअली देयर विल बी इंक्रीज इन दिस क्वार्टर गोइंग ऑन क्वार्टर. उसके बाद इस साल के एंड तक थर्ड फोर्थ क्वार्टर में देयर विल बी एक्सीलेंट सेल्स इन इंडिया डोमेस्टिक मार्केट एक्सपोर्ट. मतलब नहीं आप सेल करोगे उसका कोई डाउट नहीं है सर डेफिनेटली सेल्स पिकअप होगा बट जस्ट आपका स्ट्रैटेजी क्या वो समझना था. तो बेसिकली आप जो बता रहे हो आप अपनी रीच बढ़ा रहे हो नेटवर्क बढ़ा रहे हो जो पहले नहीं था एंड जिसके कारण आपको भी ट्रैक्शन मिल रहा है. तो वही होगी ना जी रीच वो जैसे पहले स्टॉक नहीं था स्टॉक हो गया जहाँ वो तो रीच बढ़ाने से ही बढ़ेगी ना जी. स्टॉक मार्केट में बंदे हो गए सारे सिमिलर लाइन सेम लाइन से क्या अपने आप बढ़ जाएगी डिलीवरी फास्ट होगी क्या और तो कोई सिस्टम ही नहीं होता ना जी बढ़ाने का यही सिस्टम होता है ना जी. राइट. सर मार्जिन क्या रहेंगे सर आपका जो डोमेस्टिक में जो मार्जिन रहता है और एक्सपोर्ट में मार्जिन उसमें कितना अंतर रहेगा. नहीं अभी तक काफ़ी अंतर है ना जी ग्रेजुअली हमारी प्राइस भी बढ़ रही है ना डोमेस्टिक में जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती जाएगी वहाँ भी मार्जिन बढ़ते जाएगा. नाले अगर जो सेल होती है ना जी किसी चीज़ में कोई भी प्रोडक्ट है कोई बड़े से बड़ा मार्केटिंग कार वाला ले लो मर्सिडीज वाला वो S क्लास भी बना रहा है वो C क्लास भी बना रहा है मार्जिन बराबर नहीं होते वो तो आपको चीज़ों का कम्बिनेशन बनाना है. आप ये देखो ना इतने प्राइस बढ़े रॉ मटेरियल के इवन देन वी कैन ईजिली रिटेन अवर बेटा. अगर जैसे सेल बढ़ेगी अगर मान लो डोमेस्टिक से कम भी होता है जो हमारी कैपेसिटी बढ़ी है सारी
अगर हम उसको ही फुल्ली यूटिलाइज कर लेते हैं, मोर एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं, उससे एक्सपेंसेस डाउन हो जाएंगी। जितना रॉ मटेरियल खरीदोगे 2-3% रॉ मटेरियल ही सस्ता मिल जाता है आपको वॉल्यूम बिजनेस पे। तो वो इसलिए ना जी 2-4-5% मार्जिन प्लस माइनस कोई ज़्यादा मैटर नहीं करते। अच्छा, ये सॉलिड एक्रिलिक का क्या रेवेन्यू आ रहा होगा अपने बिजनेस में एज ऑफ FY20? हाँ जी, नहीं, FY21 में कितना रेवेन्यूज आया होगा सर सॉलिड एक्रिलिक सरफेस से? 2 करोड़ भी नहीं आया जी, 2-3 करोड़ में। एंड अच्छा, इस साल आया अभी शुरू। ऐसे है ना जी, वो मार्केटिंग ही नहीं हुई ना, जब चला तो कोविड हर जगह हो गया, एक्सपोर्ट में भी डोमेस्टिक में भी। जो वो 2 करोड़ भी है उसमें 1.5 करोड़ एक्सपोर्ट का ही है। एक्सपोर्ट में वी आर गेटिंग वेरी गुड मार्केट राइट नाउ, बड़ी चल रही है हर जगह। जैसे जैसे अगर कोविड खुल गया, जब भी फ्लाइटें चल पड़ती हैं, हमारे टारगेट कस्टमर कंट्री पहले टारगेट किए हुए हैं। एक देखो ना, हमको हमारे वी हैव सो थोड़ी सी सेल में वी हैव एवरी सर्टिफिकेट जो LG सैमसंग कोरियन के पास है। लास्ट 2-3 वीक्स बैक वी हैव NSF सर्टिफिकेट जो USA गवर्नमेंट देती है, वो हमारे पास लैमिनेट्स में मिल गया, एक्रेलिक में मिल गया। अवर एक्रेलिक इज फायर रिटार्डेंट आल्सो, अवर एक्रेलिक इज एंटी बैक्टीरियल आल्सो, वी हैव सर्टिफिकेट नॉट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम यूरोपियन कंट्री। तो इसलिए जी वो सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट टू टेक ऑफ के लिए बैठे हैं बस। ऐसे मार्जिन में कितना अंतर रहेगा लैमिनेट्स एंड सॉलिड एक्रिलिक में सर? नहीं, वो भी अभी तक तो बहुत लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है उनका मार्जिन भी, क्योंकि वहाँ अभी सॉलिड एक्रिलिक ज़्यादा नहीं है। हाँ, अभी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है ना जी। गॉट इट। सो ये पहले आप एक्सपोर्ट टारगेट करोगे, उसके बाद डोमेस्टिक टारगेट? एक्सपोर्ट विल बी मेन स्ट्रीम मार्केट। दोनों ही करेंगे ना जी, डोमेस्टिक में जो लगाई रहे हैं पहले। श्योर, ठीक है सर, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. The next question is from the line of Keshav Garg from CCIPL. Please go ahead. सर मैं ये समझना चाह रहा था सर, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में अपनी 30% सेल डोमेस्टिक मार्केट में हुई, तो सर आउट ऑफ दिस सर कितनी B2B है और कितनी B2C है? ऐसे ना जी, फर्स्ट क्वार्टर में तो कहीं ना तो कोई यहाँ से वो जा सके मार्केटिंग वाले बंदे। ये सेल बढ़ रही है जी, ये अभी इसका पूरी असेसमेंट सच्ची बताऊँ लगाई नहीं है कि कोई B2B कितनी है, B2C कितनी है। यस, अब ये इसकी असेसमेंट लगेगी इस क्वार्टर ऑनवर्ड आगे जाके, जैसे जैसे मार्केटिंग का आगे निकलेगी उसकी पूरी लगेगी कहाँ क्या हो रहा है। बट इतना जरूर लग रहा है, इसी जैसे अभी 15 दिन गए हैं, सेल इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। ओके सर। और सर कुछ आइडिया आप दे सकते हैं सर, जैसे पिछले 1 साल में या पिछले 3 साल में सर हमारा कितना रियलाइजेशन ग्रोथ हुआ है और कितना वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है? दोनों में हुआ है ना जी, रियलाइजेशन ग्रोथ भी अगर आप देखो तो इसी वजह से तो आप बिट्टा से ही देख लो, वो तो आपको ज़्यादा मेरे से समझ लग जाएगी। वॉल्यूम में अभी है ना जी, सेल की फिगर देखो, लास्ट ईयर ज़्यादा अगर कोविड ना आता, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर सेल, इवन देन 5% की एडिशन हुई। एक्सपोर्ट में 10 to 11% हमारा इंक्रीज हुआ। दैट इज नॉट वैल्यू वाइज, दैट इज वैल्यू वाइज एंड क्वांटिटी वाइज आल्सो। तभी तो हमने इतना जो कैपेसिटी बनाई हुई है, इसलिए बनाई ना भी, इट विल बी इंक्रीज्ड। अगर ये कोविड ना आता, शायद लास्ट ईयर ही हमारी सेल ज़्यादा होती। इस साल अगर अभी भी हर जगह पीस हो गया, सेल विल बी डेफिनेटली मोर, कैपेसिटी भी यूटिलाइज होगी, वैल्यू एडिशन भी, जब सेल बढ़ेगी वैल्यू एडिशन भी बढ़ जाएगी, एक्सपेंसिव डाउन हो जाते हैं आपके। सर तो हमने इस साल सर ईयर ऑन ईयर कोई प्राइसेस बढ़ाए ऑन एन एवरेज? हाँ बढ़ रहे हैं जी, एक्सपोर्ट में भी बढ़े हैं, डोमेस्टिक में भी बढ़े हैं। सर लगभग ऑन एन एवरेज सर कितना बढ़ा होगा लगभग? कुछ नहीं जी, एक्सपोर्ट में भी किसी कंट्री में 3%, किसी में 5%, किसी में 6%, जैसा जैसा कंट्री की कैपेसिटी है। डोमेस्टिक में भी किसी में 5 बढ़ा, किसी में 10 बढ़ा, किसी में 15% भी बढ़ गया, क्योंकि एवरीबॉडी नोज दैट प्राइसेस इंक्रीज ड्रास्टिकली। श्योर सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. The next question is from the line of Anuj Jain from ValueQuest Capital. Please go ahead. थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर ये जानना था, प्राइसिंग की बात हो रही थी कि हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं
उसमें आर वी सेलिंग एट डिस्काउंट टू आवर कंपटीशन, एंड इफ यस व्हाट इज द रेंज, कितने डिस्काउंट पे हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं? नहीं, किसके कंपैरिजन पे? जो हमारे कंपटीशन है। नहीं ऐसे ना, कंपटीशन भी है ना जी, किसके साथ? देखो इंडिया में 200 प्लस फैक्ट्री है। टॉप 3 प्लेयर्स में नहीं, टॉप 3 से थोड़ा सा हमारे तो प्राइस डिस्काउंट नहीं होता, हमारी प्राइस लिस्ट ही उनसे कम है। डेट स्लोली बढ़ती जाएगी जैसे जैसे प्रोडक्ट की अवेयरनेस होती है। हमारे प्राइस भी साल 1.5 साल में उनके बराबर टाइप आ जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट है जैसे हमारा एंटी फिंगर है, वी हैव ए मोर वैल्यू एडिशन इन दैट, मोर प्राइसेज है, क्योंकि हमारे पास ही एक लाइन है जो इंडिया की वर्ल्ड की फर्स्ट मशीन है जो एंटी फिंगर बनाने वाली है ऑन थिन लैमिनेट्स। उसमें हमारे वैल्यू एडिशन मच मोर देन अदर्स। ये तो प्रोडक्ट मिक्स ही चल रहा है ना जी, वैल्यू बढ़ ही रही है। वो तो आपको हमारे अबिटा से, हमारी फाइनेंशियल फिगर से ही आपको लग ही रहा होगा। अभी यू नो बेटर देन मी इट इज बेटर और नॉट, एंड डे बाय डे आपने बोला कि डे बाय डे इम्प्रूव होगा और प्राइसिंग गैप डिक्रीज होगा। तो अभी प्राइसिंग गैप कितना है? मतलब जैसे होता है कि 20% डिस्काउंट पे है, अगर हमारे डिस्काउंट ना कहो ना जी, डिस्काउंट नहीं, वी आर नॉट गिविंग, इसमें कोई प्राइस फिक्स नहीं है। डिस्काउंट से मतलब डिस्काउंट हमारी होंगी 10-15% उनसे कम होंगी, डेफिनेटली होंगी। कुछ प्रोडक्ट में 20 भी होगी, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा भी होगी हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. We would like to remind participants that you may press star 1 to ask a question. The next question is from the line of Chirag Shah from ValueQuest. Please go ahead. सर मुझे ये जानना था, आपका एक्रेलिक का ये साल का क्या टारगेट है? अपन ये साल कितना सेल कर सकते हैं? मिनिमम 50-60 करोड़ होनी चाहिए जी, मिनिमम का है। मैंने ज़्यादा भी हो सकता है। 2 साल में? ओके नहीं, दो साल में तो आपने बोला नहीं, 2 साल में तो हमारी तो एक मशीन और आ रही है। 2 साल में तो ये 200, 250, 300, अगर देखो 500-600 करोड़ का तो इम्पोर्ट ही हो रहा है इंडिया में। फर्स्ट, सेकेंडली लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि दिस इज ए बेस्ट प्रोडक्ट व्हेन बीइंग इन इंडिया। तो प्राइस भी मॉडरेट होती जा रही है। कुछ नहीं प्रोडिक्शन कर सकते, बट डेफिनेटली मार्केट इज ग्रोइंग मार्केट, तभी तो इम्पोर्ट हो रहा है इतना। और कौन से प्लेयर है इंडिया में? मैन्युफैक्चरिंग में तो इन दिस फील्ड वी आर फर्स्ट। बाकी जो कोरियन है उन्होंने अपने ऑफिस खोले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हुए हैं। LG का भी है, सैमसंग भी है, ड्यू पॉइंट का भी है, एवरीवन इज हैव ए। हैनेक्स का भी जहाँ मरीनो इंपोर्ट करता है एक्सक्लूसिवली। ओके समझ गया सर। एंड सर सेकंड, डोमेस्टिक अगर अपन देखें लैमिनेट्स में लास्ट 3 साल से आपका टर्नओवर 150 करोड़ के आसपास ही था। सो ये नेक्स्ट 2 साल में क्या हो सकता है सर डोमेस्टिक लैमिनेट बिजनेस? नहीं होना चाहिए जी, 300-350 करोड़ का डेफिनेटली 300-400 होना चाहिए। यही अनफॉर्चुनेट रहा अगर ये। क्या चेंजेस लाए आपने लास्ट 2 साल में? क्या नहीं 2 साल में नहीं, 2 साल में नहीं चेंजेस, तो अभी हम 6 महीने की ला रहे हैं अभी चेंजेस। अगर 2 साल पहले लाई होती तो फिर सेल ही हमारी 300 होती। तो पहले ना तो हमारे ओल्ड प्लांट नहीं, पहले तो हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं थी ना जी ओल्ड प्लांट में। तो तब हम मोस्टली ये एक्सपोर्ट में थे। जब हमने ये प्लांट ट्रेन पे आया तभी ये कोविड की प्रॉब्लम शुरू होगी 1.5 साल की। इस वजह से नहीं, वी आर डूइंग वेल फ्रॉम अवर साइड। एंड सर जस्ट लास्टली, प्लाईवुड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका रेवेन्यूज एक्सेट्रा सब नेक्स्ट ईयर से आएगा कि ये साल से ही चालू हो जाएगा? ना इस साल में नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर होंगे। नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एंड सर ओवरऑल मार्जिन मेंटेन हो जाएंगे राइट? जो भी इन्फ्लेशन है सब पास हो जाता है। अगर आप देखो ना जी, अगर हमने इतने स्पाइट ऑफ जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, इतना रॉ मटेरियल प्राइसेस तब मेंटेन कर लिए, ऑन दिस सेल कर लिए। जैसे सेल बढ़ेगी एक्सपेंसेस तो नहीं बढ़ेंगे ना जी, उसके कंपैरिजन में प्रपोर्शन वो नहीं बढ़ेंगे, फिर प्राइसेस डाउन भी आ सकती है। डेफिनेटली इट शुड बी मेंटेन, इट शुड बी लिटिल मोर, शुड बी बेटर। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। थैंक यू सर।
Thank you. Mon. The next question is from the line of Karan Bhatelia from Asian Market Securities. Please go ahead. Hi sir, thank you for the opportunity. सर जैसे आप बता रहे थे सॉलिड एक्रेलिक शीट मोटा मोटी इम्पोर्ट्स होता है एंड हमने अभी चालू किया है. सो प्राइसिंग डिफरेंस क्या होता है सर अपने प्रोडक्ट में और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट में? इम्पोर्टेड प्रोडक्ट में देखो जी 10% तो कस्टम ड्यूटी है, फ्रेट है, ओशन फ्रेट है, सब कुछ 15-20% का तो वैसे ही डिफरेंस आ गया. क्वालिटी हमारी सेम है, सेम मशीन है. उनका तो एक सिर्फ ब्रांड वैल्यू है, फिर उनके एक्सपेंसेस भी यूरोपियन के डिफरेंट होते हैं, इंडियन के एक्सपेंसेस भी उनके कंपैरिजन में कम है. देयर इज ए प्राइस डिफरेंस ऑफ 25 to 30%, 20 to 30% मिनिमम. राइट. तो जैसे इसके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर विल बी सेम जो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो? नो सेपरेट. ठीक है. और जैसे सर अभी डोमेस्टिक साइड में आप मार्केट शेयर गेन देख रहे हो, बिकॉज हम सुन रहे हैं कि लास्ट 6 महीने में फिनॉल का काफ़ी प्राइस शॉर्ट अप हुआ है, तो काफ़ी जो दिक्कत हो रही है छोटे प्लेयर्स को, तो उसमें कुछ फायदा हुआ है अपने को? नहीं, अभी तो फायदा पता क्या ना जी, इसका तो फायदा किसी को पता ही नहीं लगा. ये इतना जो कोविड की सिचुएशन में ना जी, फायदा तो पता एक्चुअली फायदा चलेगा 2-3 महीने बाद, अगर एवरीथिंग इज पीसफुल रहता है सारा कुछ. नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा फायदा कितना होता है. अच्छा. अभी तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, कई जगह स्टेटेड अभी भी बंद पड़ी हैं. मतलब बढ़ने से कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता. और सर अभी ये जो कंटेनर अवेलेबिलिटी है, कंटेनर कॉस्ट है, ओशन फ्रेट है, तो उसका क्या व्यू है? मतलब 6 months डाउन द लाइन क्या दिख रहा है आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं दिख रहा. अभी तो जी मेरे को लग रहा है जी इन्होंने कार्टेल टाइप कर लिया वर्ल्ड वाइड में. दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी. वर्ल्ड सब समझता है, हम बोर्ड में भी समझता है. हमारा कुछ पास होना शुरू हो गया. 50% तो लोगों ने हमें दे दिया है, 50 to 60%. कुछ हमारा खुद बियर करना पड़ रहा है, वो भी दे थोड़ी अंडरस्टैंड. जब ओशन फ्रेट सब समझते हैं जिन्होंने कार्टेल कर लिया है. ये नहीं पता कि कार्टेल 6 महीने चलता है, साल चलता है, जो लंबा चलेगा. अगर लंबा चलेगा देन ये प्राइस बढ़ जाएगी. हम सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना. और ये जो वो तो एंड प्रोडक्ट जाके स्मॉल कंज्यूमर पे ही पड़ जाना है ना, जो भी है. यस वो तो है, वो तो है करेक्ट. और सर ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपोर्ट में जो 10% डिक्लाइन है, तो इज इट करेक्ट टू अज्यूम के लॉजिस्टिक्स के कारण हम नहीं कर पाए? मतलब वी हैड ऑर्डर्स इन हैंड. सॉरी क्या चीज सर? ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो एक्सपोर्ट में 10% लोअर रेवेन्यू आया है, तो इज इट? आप प्लीज यार, यू आर कंपेयरिंग ओनली विद द लास्ट क्वार्टर. हाँ, यस. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये लॉजिस्टिक्स नहीं, क्वार्टर टू क्वार्टर तो बढ़ा ना जी. वो लास्ट क्वार्टर में था ना जी, हमारा वो बन गया था सारा सिस्टम. अगर कोविड ना आता तो फिर तो वो सिस्टम डिस्टर्ब ना होता ना जी. कंटेनर होल्ड करा दिए. अब इस क्वार्टर में या इस मंथ में सेल देखना, वो मे बी इट विल क्रॉस 4th quarter आल्सो. अगर सब हर जगह पीस रहती है तो शायद कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. ठीक है. करो पहले 3 क्वार्टर से तो हमने इंक्रीज किया ना जी. यस. ठीक है. दैट्स इट फ्रॉम माय एंड सर. कुछ रहेगा तो आई विल फॉलो बैक. थैंक यू. एनी टाइम. थैंक यू. वेलकम. Thank you. The next question is from the line of Amanjeet Singh from Oculus Capital. Please go ahead. हाँ जी सर. सर एक्चुअली सर कॉल के बिगनिंग में सर आपने कहा था कि सर आपका रेवेन्यू आपका एक्सपेक्टेड 30% ग्रोथ सर. सो वो कौन से बेस पे था? क्या चीज जी? सर आपने कॉल के बिगनिंग में आपने बोला था एक बारी 30% ग्रोथ के बारे में बात की थी सर. तो वो एनुअल बेसिस के बात कर रहे थे कि क्वार्टर की बेस में बात कर रहे थे सर आप? नहीं, मेरे को नहीं पता किस क्वेश्चन ने पूछा था. 30% जैसे उन्होंने कहा ये लास्ट ईयर से मैं कहा 30% इंक्रीज होगी. मान लो सेल के बारे में वो एक पूछ रहे थे ना, 600 करोड़ की हो जाएगी. मैं कहा नहीं, इट विल बी मोर देन 30% इन लास्ट ईयर. ओके, आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन. गॉट इट सर. ओके, थैंक यू सर. Thank you.
The next question is from the line of Sitesh Kumar from Alpha Capital. Please go ahead. हाँ सर ये डोमेस्टिक में आप अभी स्केल अप करने की बात कर रहे हो. आई एम श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ मार्केटिंग स्पेंड भी आपका काफी करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज यू बीइंग अ न्यू प्लेयर, एटलीस्ट ब्रांड एस्टैब्लिश करो. No. Again, sorry, sir. We are not a new player. We are a player for the last 25 years. 5 years in this market. Everybody knows Stylem. वो हमारी कंपल्शन थी या हमारा कोई इन्वेस्ट कम था पहले. We are more focusing on export market. We have no capacity at that time. वो सेटअप हमारा बन चुका है सर. अगर फर्स्ट क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस डालने, काफ़ी एक्सपेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं. मार्केटिंग टीम बिल्टअप है, वो कोई डाउट नहीं लग रहा. रिजल्ट इज कमिंग, हमें दिख रहे हैं रिजल्ट आने वाले हैं, आ भी रहे हैं. नहीं मतलब जो नेटवर्क अब रीच आप बढ़ा रहे हो जो पहले नहीं थी कुछ जगह पे, जहाँ पे अभी आप जा रहे हो, हर जगह बना रहे हैं पूरा. राइट. तो मतलब कोई मार्केटिंग स्पेंड इतना हेवी नहीं होगा सर इस प्रोसेस में? होता ही नहीं है जी, वो तो कुछ नहीं आता है उस पर. जब सेल बढ़ती है ना जी, 10-20 लाख एक्सपेंडिचर पर मंथ, 30 लाख, कोई मैटर नहीं करता. नथिंग. उस वैल्यू के मुकाबले कुछ भी नहीं है. जितनी हमारी सेल बढ़ेगी, आप कोई हमारा एक्सपेंसिव तो आप यू कैन अंडरस्टैंड. कोई हमारी फाइनेंस कॉस्ट नहीं बढ़नी, कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, कोई टोटल वर्कर ही बढ़ेंगे ना. अगर प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, सेल बढ़ती है, मार्केटिंग के कितने 10-20 आदमी और आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे. ओके. नहीं सर, बट आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा इस प्रोसेस में, बिकॉज अगर आप डोमेस्टिक में रहेंगे तो मोर नंबर ऑफ एसकेयू. नहीं, वो टेम्परेली बढ़ता है, जैसे इस क्वार्टर में भी बढ़ा है, क्योंकि वी हैव टू बिल्ट अप द स्टॉक. जब वो सेल शुरू हो जाती है फिर वो भी कवर होना शुरू हो जाता है. ओके. 20 करोड़ बढ़ भी गया, जब इतना आपका इंटरनल सेल है, इतना बिकता है, कोई मैटर नहीं करता जी ज़्यादा. राइट. ओके. एंड सर ये 60 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है प्लाईवुड, इसके अलावा और कोई मेजर इन्वेस्टमेंट है सर करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं. सर आप कुछ नए मशीन लाइन की बात कर रहे थे, राइट? सॉलिड एक्रिलिक में जो आप बता रहे थे शायद ये साल या नेक्स्ट ईयर आ जाएगी. इसी साल में वो ली हुई है हमारी पहले ही. इस साल में तो वो लगा हुआ एक्सपेंडिचर कोई नहीं है जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. कोई 20-50 लाख करोड़ रुपया उसको इंस्टॉल करने में, छोटी छोटी चीज़ों पे लगता है. वो ज़्यादा नॉट ए बिग इन्वेस्टमेंट. इफ वी गो तो आपकी लोगों की परमिशन के साथ अगर हम कभी नया प्लांट लगाएंगे, देन वी विल बी हैविंग कैपिटल, मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट राइट नाउ. तो सॉलिड एक्रिलिक, तो अभी एक्रिलिक सरफेस में जो आपका करंट कैपेसिटी है आई थिंक 3.2 लाख शीट पर एनम, ये बढ़ जाएगा अभी आफ्टर दिस न्यू मशीनरीज दैट आर कमिंग इन? नहीं, वो हमने टोटली किया हुआ है ना जी, वो भी मशीन आई हुई है, चल रही है. टोटल मैंने रेवेन्यू बढ़ाया है. शीटों की कैपेसिटी ना जी, जैसे हम लेमिनेट्स की भी लिख लेते हैं 15 मिलियन 14 पॉइंट, दैट इज ऑन एवरेज बेसिस. कल को अगर आप कोई हायर थिकनेस की बिकती है तो वो डाउन हो जाती है क्वांटिटी. अगर थिन बिकती है शायद वो उससे भी 1 मिलियन और बढ़ जाए. तब ना ये जो मेन तो ना जी फिगरें उस पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं जी, आपकी वैल्यू. आई बिलीव इन वैल्यू. जो आपने 300-400 करोड़ का पोटेंशियल बताया है सॉलिड एक्रिलिक से, राइट? हाँ जी, 250 to 350 के अगेन डिपेंडिंग. अगर 6 mm की सेल ज़्यादा होगी तो कम हो जाएगी, 12 mm की ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हो जाएगी. ओके, श्योर, गॉट इट. थैंक यू. Thank you. Ladies and gentlemen, this was the last question for today. Thank you, madam. Thank you, sir. On behalf of Systematics Institutional Equities, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Okay, thank you.